کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، پیپلز بس سروس کے اوقات کار میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا۔ 15 رمضان سے رات 1 بجے تک بس چلائی جائے گی۔ شہزل انعام میمن نے عوام کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے کا عزم دہرایا۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے اقصیٰ شاہد سے۔ جی اقصیٰ بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کی جانب سے رمضان مبارک کے مہینے میں پیپلز بس سروس کے اوقات کار میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اضافے کا اعلان شہزل انعام میمن نے کیا ہے۔ 15 روزے کے بعد جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں بس سروس اب رات 1 بجے تک جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ اوقات میں جو ہے وہ توسیع کا اعلان اطلاق جو ہے وہ 15 روزے کے بعد کیا جائے گا، جس میں تمام جو ہے وہ پیپلز بس سروس کے تمام روٹ جو ہے وہ شامل ہیں۔ R1 R2 R3 R4 R9 R10 اور EV1 روٹ بھی اس میں جو وہ شامل کیا گیا ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں شہریوں کو درپیش مشکلات کے مسائل جو ہے وہ حل کرنے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ شہزل انعام میمن کہتے ہیں کہ تمام شہری جو بس سروس کی توسیع شدہ اوقات کی جو ہے وہ سروس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ شہری رمضان مبارک کے مہینے میں شاپنگ کے بعد جو ہے وہ محفوظ طریقے سے اپنے گھر پہنچ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں نکاسیاب کے مسائل حل نہ ہو سکیں، نیپا چورنگی کے قریب یونیورسٹی روڈ پر تاحال پانی جمع ہے۔ پانی مستقل کھڑا رہنے کے باعث سڑک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ گہرے گڑھے پڑنے کے باعث سڑک سے گزرنا شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے وسیم افتخار سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں نیپا کے مقام پر یونیورسٹی روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ شہریوں کے لیے اور بالخصوص اس روڈ پر جو سفر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کنڈکٹر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات پیش آتی ہیں مسافروں کو، اور بالخصوص آپ گاڑی چلاتے ہیں، کنڈکٹر بھی ہیں، آپ کتنی پریشانی ہو رہی ہے، کب سے صورتحال ہے؟ بہت پریشانی ہو رہی ہے جناب، تقریباً یہ 1-1.5 مہینہ ہو چکا ہے، یہاں پہ پانی وغیرہ کبھی خشک ہوتا ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ عوام ہیں جو یہاں آتی جاتی ہے، بہتوں کو پریشانی وغیرہ ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیے اب یہ حال ہے، تو یہ ہماری عرضی ہے آپ لوگوں سے تاکہ یہ روڈ ہمارا جو ہے کہ جی بالکل، یہ تھے کنڈکٹر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو شہری ہیں بالخصوص جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالخصوص یہ حصہ ہے یہاں پر اس پانی کی وجہ سے گڑھے پڑ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جب موٹر سائیکل سوار ان گڑھوں پہ جاتے ہیں تو ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ ڈوب بھی جاتی ہے، بند بھی ہو جاتی ہیں، حادثات بھی جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں، اور یہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے کوئی بھی انتظام موجود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے وہ بھی جو ہے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ان کی جانب سے کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ موٹر سائیکل سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا اور بالخصوص جو شہری ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہاں پہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ ان کو سفر کرنے میں آسانی ہو سکے۔ جی، شہر قائد میں سیوریج کا نظام درست نہ کیا جا سکا، کورنگی 1.5 نمبر کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گٹر ابلنے سے ٹریفک روانی میں بھی متاثر ہو رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں بدبو اور گندگی کے باعث سڑک سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے علاقے کورنگی 1.5 نمبر پہ، اور اس چورنگی کو ویٹا چورنگی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ میرے کپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سڑک کا حال کیا ہوا ہوا ہے۔ یہ سڑک بالکل ابتر حالت میں ہے، اتنی خستہ حال ہو چکی ہے۔ گٹر لائن کا پانی یہاں پر کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کے عام طرف میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پانی کی وجہ سے اس روڈ پہ گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کے باعث یہاں سے جو پیدل گزرنے والے ہیں وہ بھی نہیں گزر سکتے، یہاں سے نمازی گزرتے ہیں، ان کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دکانیں بھی ہیں، لوگ اپنے کاروبار کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن اس سڑک کی وجہ سے کافی کاروبار بھی لوگوں کا متاثر ہو رہا ہے۔ ٹریفک کی عام رفت میں بھی دشواری کا سامنا ہے، اور جو پیدل چلنے والے ہیں ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ یہ سڑک جو ہے بالکل خستہ حالت ہو چکی ہے، یہاں پہ گڑھے پڑ چکے ہیں۔ یہ پانی جو 1 ہفتے سے زائد ہو گیا لیکن یہاں پہ کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ غائب ہیں، یہاں پر کوئی نہیں آیا ہے کہ یہاں آ کے جو شہریوں کے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں۔ تو یہاں کے شہریوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ تو روز کا معمول بن گیا ہے، یہاں پہ اس طریقے سے پانی کھڑا رہتا ہے، سڑک کی جو ہے ابتر حالت ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو ہم بات کر کے بھی تھک گئے ہیں، تو ہم بات نہیں کر رہے۔ تو یہاں کے شہریوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کی تعمیر کی جائے، اس سڑک کو پھر سے جو اس کی پرانی حالت تھی اس میں لے کر آیا جائے، اور یہاں پہ پانی کو صاف کروایا جائے۔ جو سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے، سیوریج کے نظام نے اس سڑک کو بالکل تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ جی،
शमसी सोसाइटी से मुتصल रेलवे फाटक से गुजरने वाली दोनों सड़कें खस्ता हाली का शिकार हो गईं। एक जानिब सड़क टूट गई और दूसरे रोड को गैस पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करके छोड़ दिया गया। सड़क पर गहरे गड्ढों में पानी जमा होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शमसी सोसाइटी से मुत्तसिल रोड पर मौजूद हूँ, जो वहाँ पे आने और जाने वाली सड़क जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार देखा जा सकता है। यहाँ पर रोड पर डालने वाले जो पत्थर हैं, जो मटेरियल है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त एक रूट पर जो है वो सड़क खस्ता हाली का शिकार है, जबकि दूसरे रूट पर जो है ये देखा जाता है कि गैस की पाइपलाइनें डलनी थी, लेकिन वो नहीं डली और सड़क को जो है वो खोद के जो है वो छोड़ दिया गया। अब इन सड़क पे जो गड्ढे पड़े हुए हैं उनसे ये सूरत हाल है कि उनमें जो है वो पानी कहीं से भी आता है तो फौरी तौर पे जो है वो यहाँ पर जमा हो जाता है और रात के अंधेरे में ये सड़क जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाती है। इस वक्त शमसी सोसाइटी रेलवे फाटक की तरफ जो है वो इस मुत्तसिल सड़क पर मैं मौजूद हूँ। सूरत हाल जो आप यहाँ की देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो गुजरने वाली गाड़ी या फिर बाइक है वो किस तरीके से जो यहाँ से बच बचा के गुजर रही है। रमज़ान मुबारक का महीना है, शहरी नमाज की पाबंदी करते हैं और ये देखा जाता है जो इस तरह की फिर सेवरेज के निज़ाम होते हैं वो कपड़ों को जो है वो नापाक करते हैं और फिर एक जो मुतमईन शहरी होते हैं वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जो नमाजियों का गुज़र है वो इस चीज़ की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है, जबकि जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने वाली हैं वो भी यहाँ से जो है वो हिचकोले खाती हुई यहाँ से गुजर रही हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए जो काम यहाँ पे रोक दिया गया है, जो मटेरियल यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, इसको जो है वो फौरी तौर पे कंप्लीट किया जाए ताकि रात के अंधेरे में जो यहाँ पे हादसात होते हैं, ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये गड्ढे पड़े हुए हैं, इनसे जो है वो बचा जा सके। जी, लाख जतन के बावजूद लियाकताबाद का परिंदा बाजार ख़त्म न किया जा सका। लियाकताबाद नंबर 10 के परिंदा बाजार से इतराफ़ के फ्लैटों के लाखों मकीन महसूर हो जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के रास्ते बंद होने से मरीज और अमला परेशान हो गए। अदालती हुक्म के बावजूद लियाकताबाद फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग खत्म न की जा सकी। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, लियाकताबाद 10 नंबर से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि SM तौफीक रोड और शारा पाकिस्तान का संगम है। लियाकताबाद फ्लाईओवर के इतराफ गैर कानूनी इतवार को परिंदा बाज़ार लगता है, जिसके लिए लाख जतन किए KMC के महकमा इंसदाद तजावीज़ात ने, टाउन हुकूमत के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने और सबसे बढ़कर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर्स मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी के हमरा आए। इस गैर कानूनी बचत बाज़ार को ख़त्म कराने की कोशिश की गई, लेकिन सारे इक़दामात धरे के धरे रह गए और बदस्तूर ये बाज़ार जो है वो लगाया जा रहा है। बताता चलूँ आपको कि इस बाज़ार के लगने के नतीजे में बराबर ही मौजूद सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरकज़ी गेट भी बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से गुज़िश्ता बरस एक अफसोसनाक साने ने भी जन्म लिया था, जब एक धमाके की सूरत में 5 मुलाजमीन जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, लेकिन इस परिंदा बाज़ार के नतीजे में बर वक्त उनको जो है बंस वार्ड सिविल हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा सका और वो रास्ते में दम तोड़ गए। इसके अलावा इतराफ़ में यहाँ पे अल आज़म स्क्वायर है, अलकरम स्क्वायर है, इसके जो मकीन हैं ये इतवार के रोज़ जो है बिल्कुल शदीद परेशानी से दोचार होते हैं। इनका कहना है कि मैसूर होकर रह जाते हैं। ऐसे एक शहरी जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा क्या क्या तकालीफ हैं इस बाज़ार से? अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे बड़ी तकालीफ तो ये है कि यहाँ जो बच्चियाँ मेरे सामने बड़ी हुई, जवान हुई, उनके कई एक रिश्ते आते हैं और सिर्फ इस वजह से चले जाते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये कौन सा बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ कौन सी परवरिश हो रही है, कौन सी तरबियत हो रही है, जो मतलब यहाँ पे, और उन बच्चियों का फिर आप ये देखें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले ये बताइएगा कि इतवार के रोज़ यहाँ के लोगों की आमदोरफ्त और खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो तो उनको क्या एक्सेस हासिल है कि फौरी तौर पर वो निकल सके? लोग जो है ना देखें बहुत परेशान हैं, बहुत अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे यही कहूँगा कि यहाँ पे जो शरीफाबाद थाने के SHO साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इनको जो है ना, मैं कई दफ़ा मैंने उनको SHO साहब को खुद भी कहा तो वो कहते हैं यार हम मजबूर हैं, ये सब कुछ आती हैं, मोबाइलें आती हैं, पकड़ के भी ले जाते हैं, फिर वापस ला के इन लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये तो सब अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से एक और नाअहली ये है कि लियाकताबाद फ्लाईओवर के नीचे जो है कई व्हीकल्स जो हैं, जिसमें हेवी व्हीकल्स भी शामिल हैं, उसकी बाकायदा पार्किंग लॉट कायम है, जो कि अदालती अहकामात, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि लियाकताबाद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से भी गैर कानूनी तौर पर एक चालान जारी किया गया था माजी में, जिसकी हमने रिपोर्ट किया था और उसको रिपोर्ट के नतीजे में उस चालान को वापस ले लिया गया था। इस परिंदा बाज़ार की सरपरस्ती करने वालों को जो है वो फौरी गिरफ्त में लाने की ज़रूरत है ताकि मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा किया जा सके। जी, काबिज़ीन का पैंतरा या इंतज़ामिया की नाअहली,
यूपी मोड़ पर नाले को पाइप डालकर बंद कर दिया गया। बरसाती नाले की निकासी मुहाल हो गई। नॉर्थ कराची सेक्टर E11 और I11 के आवाम की मुश्किलात बढ़ गई। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। लैंड माफिया का हाथ या इंतजामिया का कारनामा, यूपी मोड़ पर नाले को पाइप डालकर बंद कर दिया। इंतजामिया ला इल्म ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगी। बरसाती पानी कहाँ जाएगा, अवाम सरापा सवाल। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची भी करीब ही वाक़या। जरा सी बारिश होने पर मुत्तसिल सड़क पर पानी जमा होना मामूल बन गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E और 11I की आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरियों ने लैंड माफिया को जिम्मेदार करार दे दिया। काबिजीन पर नाला बंद करने के इल्जामात आयद कर दिए। सूरत हाल ये है, हम तो बार बार चीख के थक गए कि मेहरबानी करें कि 2200 रोड का जो नाला है इसको डेवलप करवाया जाए, इसको बनवाया जाए। हमारी दरख्वास्त पर एक मरतबा मुर्तज़ा वहाब साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इस नाले का विज़िट किया था और वो फरमा रहे थे कि हम जल्द इस नाले को बनवाएंगे, लेकिन ताहाल इस नाले को बनवाया नहीं गया। दिल मोहम्मद साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, सारी पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद से किसी का कुछ अता पता नहीं है। इस रोड पर ना स्ट्रीट लाइट है, नाले की सूरत हाल आपके सामने है। मेयर डीसी सेंट्रल और मुतालिका इदारे फौरी एक्शन लें। सूरत हाल से परेशान शहरियों ने कार्रवाई की अपील कर दी। बारिशों में 3-4 हादसे तो लाजमी होते हैं और आगे तकरीबन 2-3 साल पुराने एक हादसा हुआ, 4 बंदे उसमें इंतकाल भी हुआ है डूब के, और वो भी मीडिया पे आया हुआ है, मगर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त कार्रवाई ना की गई तो बारिशों में सूरत हाल मजीद बदतर हो जाएगी। कैमरामैन शाजिब के साथ अक्सर शेख 21। बचत बाजारों में भी महंगाई का राज। मनमानी कीमतों पर सब्जियां, फलों की फरोख्त का सिलसिला न रुक सका। बचत बाजार इंतजामिया मुनाफाखोरों के आगे बेबस और शहरी परेशान हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक में भी आवाम को रिलीफ ना मिल सका। कराची के बचत बाजारों में भी महंगाई के डेरे। गुलशन इकबाल में लगने वाले बाजार में अशिया सस्ती ना मिल सकी। आलू सरकारी कीमत 45 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज सरकारी कीमत 50 रुपए के बजाय 80 रुपए में दस्तयाब। देसी लहसुन की कीमत 320 रुपए किलो मुकर्रर, लेकिन 640 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। केला 170 रुपए दर्जन के बजाय 200 रुपए दर्जन तक फरोख्त। अमरूद रुपए किलो, लेकिन बचत बाजार में 200 रुपए किलो तक दस्तयाब। स्ट्रॉबेरी फी डब्बा 140 रुपए के बजाय 200 रुपए में फरोख्त। शहरी कहते हैं बचत बाजार बेमकसद हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए यहाँ आते हैं कि एक छत तले सब अशिया मिल जाती हैं। हमने यहाँ से जो भी परचेजिंग की है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत मामूली सा फ़र्क है। और जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, जैसे हमने अगर हम मिर्च ख़रीद रहे हैं या प्याज ख़रीद रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि थोड़ा क्वालिटी के अंदर जो हमने अभी यहाँ से जो प्याज ली है वो खुश्क है, मतलब ड्राई होती है, और बाहर जो मिल रही होती है वो गीली प्याज होती है। तो अब ये लोग जो लेने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। बताना चाहूँगा कि हर चीज़ की कीमत जो है ना 40% से ज़्यादा है और कोई सुनवाई नहीं है। जिला इंतजामिया महंगाई से रिलीफ देने के लिए सरकारी कीमतों पर अमल कराए तो बचत बाजार बामकसद बन सकते हैं। कैमरामैन शाजिब रज़ा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। औरंगी टाउन में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का रमज़ान बचत स्टॉल खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। बचत कैंप से शहरियों को फल, सब्जियां और कन्फेक्शनरी आइटम 20 से 30% रियायती नरखों पर दस्तयाब है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। महंगाई ने हर शहरी को परेशान कर दिया। इदारों के बाद सियासी जमातें भी मैदान में आ गईं। रवां माह रमजानुल मुबारक में सरकारी और निजी सतह पर आवाम को अर्जा नरखों पर अशियाए खुर्दोनोश के लिए बचत कैंपों की तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है। इक्का दुक्का बचत स्टॉल्स पर खरीदारों का रश दिखाई देता है। ऐसा ही एक बचत स्टॉल तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से औरंगी टाउन 13 नंबर पर भी लगा हुआ है, जहां आवाम 20 से 30% रियायत पर खरीदारी कर रही है। तकरीबन जो है 20 से 25% जो है रियायत मिल रही है यहाँ पे ना, जैसे कि फ्रूट है, कुलाची है, वहाँ पे वो टमाटर है, हरा मसाला जितना भी है, तकरीबन जो है 20-25% जो है रियायत आवाम के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। बचत स्टॉल के मुंतजिमीन बोले, यहाँ फल, सब्जियाँ और कन्फेक्शनरी के ऐसे आइटम रखे गए हैं जिनकी रमज़ान में तलब ज़्यादा होती है। माशाल्लाह से काम अच्छा हो रहा है, आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं और ये हमारे तहरीक की तरफ से हो रहा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। अब ये आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। हम जो चीज़ ला रहे हैं जितने में ये उतने ही का कोशिश की जा रही है कि हम उससे कम में ही दें। सर मैं ये कहता हूँ इस कैंप के लोगों को बहुत फ़ायदा है। वजह यह है कि मार्केटों में रेट दुगनी है, यहाँ पे ये आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। और रिलीफ ये भी दे रहे हैं, समझ लें कि जो मार्केट में 100 रुपये किलो, यहाँ पे 70-60 रुपये केजी के हिसाब से दे रहे हैं।
शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में महंगाई के जिन को काबू करने के लिए बचत स्टॉल लगाकर रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों को सहूलियात की फराहमी में पेश मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में KMC स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले KMC का हदफ कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करना है। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट देखें। शहर में खेलों के मैदान आबाद करने का अज़म। जियाली मेयर ने बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन में KMC स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची ने KMC स्पोर्ट्स अरीना में 24 स्टार के साथ क्रिकेट भी खेला। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रात में लोग चहलकदमी करते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने ये फैसला किया है जो एरिया आबाद नहीं उनको आबाद करेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची ने एक फैसला ये किया था जिसके तहत हमारे जितने भी अवामी मकामात थे जो कि माजी में इग्नोर कर दिए गए थे, जहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, थे बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से शहरी उन जगहों का रुख कर सकें। तो आप सब दोस्तों ने देखा कि हमने पिछले चंद माह में, पिछले कुछ अरसे में जो अवामी मकामात थे उनको फोकस किया, चाहे कराची ज़ू हो, सफारी पार्क हो, हिल पार्क हो, किडनी हिल हो, इन तमाम जगहों को हमने बेहतर करने की कोशिश की। मेयर कराची ने मजीद कहा, बाग इब्ने कासिम वीरान था, लाइट तक नहीं थी। तज़ीनो आराइश के बाद लोग यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यहाँ दुबई तर्ज के सहूलियात मुयस्सर हैं। तो बाग इब्ने कासिम के इस मकाम पर जो कि माजी में बिल्कुल वीरान था, यहाँ पर ना सब्ज़ा था, ना लाइट जलती थी, सिर्फ कहने को एक बाग इब्ने कासिम था, लेकिन एक्चुअली शहरियों को उसका कोई फ़ायदा नहीं था। हमने पहले फ़ेज़ में साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पर बनाया और एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया जिसका बड़ा अच्छा रिस्पांस शहरियों की जानिब से आया। इसकी जो लाइट्स वगैरह थी उनको हमने एक्टिवेट किया और लोगों ने बड़ी तादाद में इस जगह का फिर रुख करना शुरू किया। मेयर कराची का मजीद कहना था, आइंदा यहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी बनाएंगे ताकि क्रिकेट के शौकीन अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। अब हम इस तरह के ग्राउंड से पैसे भी कमाएंगे और तरक्की भी होगी। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। अल खिदमत के तहत रमज़ानुल मुबारक में राशन तकसीम। FB एरिया में तकरीब के दौरान मुस्तकीन में राशन तकसीम किया गया। मोनम जफर का कहना था कि 1200 ज़रूरतमंदों की मदद की गई। मुमताज शिगरी की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक खुशियों का महीना। अल खिदमत के तहत FB एरिया में मुफ्त बाजार सजाया गया जहां ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान ने कहा कि इलाके गुलबर्ग को हल्का गुलफशा को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो गुज़िश्ता 25 साल से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। 1200 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया गया। रमज़ान मुबारक गम ख्वारी, सब्र इस्तकामत और इसार कुर्बानी का दर्ज देता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इलाका गुलबर्ग हल्का गुलफशा के साथियों को कि लगातार 25वां साल है और रबा सदी से इस फरीज़े की अंजाम दही का काम हमारे इस हल्के के, इस इलाके के लोग अंजाम दे रहे हैं। और मुझे बताया गया कि कमोबेश 1200 से ज़ायद अफराद को आज यहाँ राशन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह ये राशन की डिस्ट्रीब्यूशन उन तमाम अहले खैर हजरात की ताउन से ही मुमकिन हो सकी है कि जो बड़े पैमाने पर अल खिदमत पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं, जमा इस्लामी पर अपना एतमाद का इजहार करते हैं और जिनकी के ताउन के नतीजे में जमात इस्लामी ये सारा प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने में कामयाब हो पाती है। मुन्नम जफर ने मजीद कहा कि अल खिदमत के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम दी जा रही हैं। कराची में अल खिदमत के तहत सेहत की सहूलियात, पीने के साफ पानी और दीगर प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अल खिदमत पूरे पाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा यतीम बच्चों को किफ़ालत यतामा के तहत सरपरस्ती कर रही है। अल खिदमत की सरगर्मियाँ इसके मुख्तलिफ शोबे हैं। साफ पानी का शोबा अलग काम कर रहा है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह कराची में काम कर रहा है। इसी तरह एजुकेशन की सहूलियात मुहैया की जाती हैं और
किफ़ालत यतामा का भी फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। मुन्नम ज़फ़र ने आयादा किया, जमात इस्लामी अवामी मसाइल पर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। तकरीब में इलाके के बलदियाती नुमाइंदे भी शरीक थे। कैमरामैन फराज खान के साथ मुमताज़ शिकरी, सिटी 21। और नाजरीन, कराची में बच्चों के वालिदैन होशियार, मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल आँखों की बीमारियों में मुब्तला करने लगा। महंगापन, आँखें खुश्क होना और खारिश की अलामात सामने आने लगी। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। बच्चों का मोबाइल का इस्तेमाल महदूद करना नागजीर। बच्चे आंखों के अमराज में मुब्तला होने लगे। भींगापन, आंखें खुश्क होना और खारिश होना अलामात। बच्चों के मोबाइल का मुसलसल इस्तेमाल खतरनाक करार। बच्चे 60 साल की उम्र में लगने वाले इमराज चश्म का शिकार। आंखों के डॉक्टर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 150 से 200 मरीज रिपोर्ट। माहिर इमराज चश्म डॉक्टर मसूद ने बताया कि ओपीडी में आने वाले 80% बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 50% बच्चों को चश्मों की जरूरत पड़ सकती है। इस टाइम जो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं ना, उनको जो अगर चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है तो तकरीबन 70 से 80% बच्चे वो हैं जिनका मोबाइल का इस्तेमाल है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ उनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, उसमें आंखों में खुश्कपन भी पैदा हो रहा है, जो अक्सर हमारे ओल्ड एज पेशेंट में होता था, जो तकरीबन 60-70 साल के जो बुजुर्ग होते थे, उनमें जो ड्राई आई की डिजीज़ होती थी वो मोबाइल के इस्तेमाल से हमारे बच्चों में शुरू हो गई है। वालिदैन भी बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बरहम। बोले घर के काम करने हो तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन देना पड़ता है। बाज ना आए तो जवानी में भी बीनाई मुतासिर हो सकती है। घर में नानी के घर जाते हैं, वहाँ से खाला से ले लिया, बड़ी खाला से, मामू से, आधे घंटे चलाते हैं, 1 घंटा। स्कूल का होमवर्क वगैरह करने बोलो, मम्मा थोड़ी देर और, इस तरह होता है। बस ये कहती हैं जलन हो रही है आंखों में और पानी आ रहा है और जो पलक झपका रही है, 1 हफ्ते से पलक झपक रही है इनकी। स्कूल में भी ये शिकायत आई है, पलक झपका रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, अभी क्यों हो रहा है, 1 हफ्ते से हो गया है। तिबी माहिरीन ने बच्चों को बार बार मोबाइल इस्तेमाल न करने की अपील कर दी। आंखों के साथ जहन पर भी गहरे असरात से खबरदार कर दिया। कैमरामैन शाहजेब के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। IMF की टीम के साथ जायजा दुरुस्त सिम पर जाने पर स्टॉक मार्केट में तेजी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1147 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,14,000 की सतह भी बहाल हो गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1147 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1.42% इजाफे से 1,14,398 पर बंद। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,14,721 और कम तरीन सतह 1,11,717 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि IMF की टीम के साथ जायजा दुरुस्त सिमत में जा रहा है। साथ ही माशी अदद-ओ-शुमार भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सर्कुलर डेप्थ की वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज, और इसके साथ साथ रिज़ल्ट का सेशन भी स्टार्ट है। रिज़ल्ट के सीज़न भी तकरीबन डेली रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। इस दफ़ा का जो हफ़्ता है ना वो काफ़ी बेहतर रहा है, और जो थोड़ा सा इशू है वो मार्केट में वॉल्यूम का है, जो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो गए हैं। लेकिन कल हमने देखा है कि वॉल्यूम रीजनरेट हुए हैं, स्पेशली ब्लू चिप्स आइटम में जो है अच्छा साइन है कि ब्लू चिप्स आइटम में रीजनरेट हुए हैं। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में 91 अरब रुपए मालियत के 45 करोड़ शेयर्स के सौदे किए गए। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 144 अरब रुपए के इजाफे से 14,125 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि महंगाई की शरह कम होने पर 10 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान की फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और बेहतर होती चली जाएंगी, और आगे चलते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो मोमेंटम है वो वापस आ जाएगा। ईद की भी कुछ वो होता है ना, रमज़ान में भी ज़रा सा लोग आराम से बैठ जाते हैं कि यार अब बाद में देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद आई सी द मार्केट मूविंग अप क्वाइट अ लॉट। बहुत ज़बरदस्त काविश रही हमारी फाइनेंस टीम की और स्टेट बैंक की कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिससे बेहतरी आई है। तो जब वो नीचे जाएगा तो रिपोर्ट पड़ेगी, जब रिपोर्ट पड़ेगी तो फिर वो रुपया प्रेशर में आएगा। स्टॉक मार्केट ने तवक्को की है कि IMF का जायजा मुकम्मल होने के बाद फंड जारी होने से मार्केट में मजीद मुस्बत असरात मरतब होंगे। अशरफ खान, सिटी 21।